My name is Dipanjali. I'm pursuing PhD in psychology. I'm from Y18 batch. My specialized area is social cognition. So, as we all know, today under Vivekananda Samiti, we are organizing a talk by Rudra Samagam Seva Evam Shiksha Samiti. So, I just like to share some experiences how I joined this NGO. So, as we all know, the COVID period tested our strength and took a heavy toll on our mental, physical, and emotional health. But I was fortunate to find this NGO, I explored it and found it to be really helpful, and especially the way it works, I felt very realistic and doable. So, I just want to give a brief introduction about our NGO and the working areas. This is an NGO working mainly in the field of education, providing mental fortitude to people by spiritual awareness and women empowerment. Also helping people with their various needs and working for the street animals and much more. This is a humble contribution to humanity in making this world a better and safer place. So I just like to call Saurabh to. Good evening and greetings to everyone. I heartily welcome you all to this session, which is rejuvenating and also very knowledgeful in the terms of spiritualism and also the methods that we should adopt in our life. I came across the Samiti in last 6 months when I was running on the path of spiritualism and I was just exploring the path to grow in all aspects of life. So the thing is, I came across Rudra Yogi ji. He helped us in a lot of ways. He teaches disciplines that should be adopted in our life to grow as a better person. And also, he works in the NGO section providing needy people in many ways. So, so I hereby call Naren Nayak sir and Rudra Yogi ji to please light the lamp and so that we can start the session. So now I would like to tell you about about our honorable chief guest Rudra Yogi ji. He is a founder and the president of our NGO Rudra Samagam Seva Evam Shiksha Samiti. He has completed masters in computer science. He is an educationist, a motivator, and expert of intense meditation. He has been providing help to the society via meditation and spiritual teachings from our Vedic culture. So I would like to call upon Nayak sir to kindly come and honor our chief guest by the shawl. Thank you, sir. Thank you. So as we know, the human life exists in three realms of existence, as a physical world and mental world and also spiritual world. So physical world is what we observe through our senses and mental world is what we define through our logic and knowledge. And spiritual world is the entire wonderful section that involves willpower, our beliefs, our emotions. So a person can grow as a personality, as a good person in a society when he has a unison in all three realms of life. So our Yogi ji, Rudra Yogi ji, he guides us in a way to become such a virtuous person for the society. So now our sir Rudra Yogi ji will guide us and enlighten us with his years of wisdom about adopting such lifestyle. So I welcome him for the talk. थैंक यू वेरी मच। पहले तो आप सभी महानुभावों का यहाँ पर आने के लिए और मेरी बात को समझने का प्रयास करने के लिए
मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी ने अपना अमूल्य समय देकर जो मेरा मान बढ़ाया है, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, इससे पहले कि मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, मैं अपने जीवन की एक छोटी सी घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्यों हम यहां पर हैं, किस तरीके से ये जर्नी शुरू हुई, बस मुश्किल से 5 मिनट की एक घटना है। हुआ क्या, जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मुझे भी लगा कि मुझे भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। सभी को लगता है, मुझे भी लगा। तो मैंने तैयारी करी और तैयारी करने के बाद जब एग्ज़ाम आया तो एग्ज़ाम का सेंटर लखनऊ पड़ा और मैं लखनऊ गया एग्ज़ाम देने। वहाँ पर तब एक छोटी सी नेपोलियन की मूर्ति लगी हुई थी। तो मैं जिनके यहाँ ठहरा था, उनका एक छोटा सा बच्चा था। वो शाम को मुझसे कहने लगा कि भैया मुझे घुमा लाइए, तो मैं उसको लेकर के गया और वो नेपोलियन की मूर्ति मैंने उसको दिखाई। उसने मुझसे पूछा ये क्या है। तब चूंकि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था तो मैंने उसको नेपोलियन का पूरा इतिहास बता डाला उस छोटे से बच्चे को। ठीक है, कि बहुत बहादुर था और उस तरीके से मतलब मैं आधे घंटे उसको बताता रहा। और जब मैंने सब कुछ उसको बता दिया तो बड़ा कन्विंस दिखा मुझे ऐसा लगा कि इसको सब समझ में आ गया। लौट आया मैं, 2-3 दिन का टाइम था एग्जाम, मैं 1 हफ्ते पहले चला गया था। फिर वहां क्या हुआ, दूसरे दिन फिर वो मुझसे कहने लगा कि भैया नेपोलियन के पास चलें। हमने कहा चलो भाई। फिर गया, फिर उसने मुझसे पूछा कि ये कौन है। मैंने उसको फिर से पूरी बात बताई, जितना मैं उसे बता चुका था फिर बताया। उसने मुझसे कहा कि और बताओ। अब मेरे पास जितनी जानकारी थी नेपोलियन के बारे में वो तो मैं सारी दे चुका था। फिर मैंने नेपोलियन में चंद्रशेखर आज़ाद, महाराणा प्रताप, मैंने सोचा ये छोटा सा बच्चा, इसको क्या ही समझ में आएगा। सब उसी में समाहित करना शुरू कर दिया और उसको मिसगाइड करना शुरू कर दिया। वो सुनता रहा। तीसरे दिन फिर वो मुझसे कहता है नेपोलियन के पास चलो। मुझे डर लगने लगा। मैंने कहा ये फिर मुझसे कहेगा। तो मैं रास्ते से ही उसको झांसी की रानी की तरफ मोल्ड करता रहा कि झांसी की रानी थी, वो नेपोलियन से भी बहादुर थी। इधर उधर की बातें करते करते फिर वही बात हुई कि मैंने सारी बातें उसको समझाई। अगले दिन मेरा एग्जाम था, तो वो लौटते समय मुझसे कहता है भैया अगर मेरे पास भी नेपोलियन होता तो मैं भी बहुत बहादुर होता। वो नेपोलियन की जो मूर्ति थी वो घोड़े पे बैठी हुई थी। वो घोड़े को नेपोलियन समझ रहा था और मैं उसे नेपोलियन के बारे में बता रहा था। अब आप ये समझ लीजिए कि ऐसा ही होता है ज्यादातर। हमसे कौन क्या कह रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा है, उसकी क्या बात है, उसका सार क्या है, ये हम कभी कभी समझते हैं और कभी कभी बिना समझे हुए ही सारी चीजों को अपने हिसाब से, जैसे हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी घटना है। इससे एक बहुत बड़ा मुझे संदेश मिला कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस बच्चे की तरह घोड़े को नेपोलियन समझते हों
और हमसे कुछ और कहा जाता हो, ये लिटरेचर, ये अध्यात्म, ये संस्कार, ये सब हमसे कुछ और कहते हों और हम अहंकारवश, अज्ञानवश किसी तरीके से इनकी बात को ना समझ करके इनको मिस इंटरप्रिटेट करते हो। ये एक मन में बात वहां से आ गई। एग्जाम अगर क्वालिफाई हुआ होता तो फिर कुछ और ही बात होती, वो तो नहीं हुआ, सभी लोग समझ सकें, इतना तो समझ रहे होंगे। लेकिन जीवन का एक बहुत बड़ा ज्ञान मिला कि जब कभी भी आप किसी से बात करें तो उसकी बात कितने आयामों तक विस्तृत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी समझ सूक्ष्म हो और आप उसके वास्तविक आयामों तक पहुंच ना पा रहे हो। यह जरूर ध्यान रखें। ये संस्कार क्या कहते हैं, ये वैदिक शास्त्र क्या कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम उन चीजों को समझ ना पा रहे हो। यह बात उस दिन से मन में आ गई। और जब कभी भी वार्तालाप हो, ये मेरा आपसे निवेदन है, जब कभी भी वार्तालाप हो, आप किसी से साक्षात्कार करें, वार्तालाप करें, तो जो मुख्य आयाम है सामने वाले के विचारों को आने दें और अपनी तरफ से संस्कार प्रस्तुत करें, तो ज्ञान अपने आप ही आपकी ओर चलना प्रारंभ कर देता। हम विचार के बदले में विचार देते हैं और साक्षात्कार विचार विमर्श में परिवर्तित हो जाता है। किसी ने अपना विचार रखा, हमने भी अपना विचार रखा और कभी कभी आक्रोश होने लगता है, अहंकार आने लगता है। इन सब बातों को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि विचार के बदले संस्कार प्रस्तुत करिए। कहा जाता है गुणी व्यक्ति एक बहुत अच्छा श्रोता होता है और श्रवण करना भी एक संस्कार है कि आप सामने वाले की बात को कितना विवेक पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। तब आपको वास्तविकता में ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसी श्रृंखला में जैसे कहा गया, देखिए जब कभी भी आप एकांत में हो, मेरा एक निवेदन है, मैं आप लोगों से करने आया हूं, आप सभी विद्वान लोग हैं, जब कभी भी एकांत में हो तो मंथन कीजिए, अपने विचारों को दोबारा से, जो भी आपकी वैचारिकता है उसको दोबारा से मंथित करने का प्रयास कीजिए। एक बहुत अच्छा प्रसंग है वैदिक शास्त्र में समुद्र मंथन का। यह कोई घटना नहीं है, यह घटना नहीं है कि दैत्यों एवं देवताओं ने मिलकर समुद्र को मथा और 14 रत्न निकल आए। ये घटना नहीं है। दैत्य हमारे मन की निगेटिविटी, नकारात्मकता और देव धनात्मकता, पॉजिटिविटी। मंद्राचल गिरी, वासुकी नाग, वासुकी नाग मतलब प्रयास, सतत प्रयास। मंद्राचल गिरी आपका हृदय, जिसके अंदर मंथन होना है, और वो कूर्म की पीठ जिसने समुद्र मंथन के लिए अपना आधार प्रस्तुत किया था, वो है आपकी दृढ़ता। पहले इन सबको एकत्रित कीजिए।
इनको एकत्रित करने के बाद अपने विचारों को मंथित कीजिए। इन शास्त्रों से, इन चीजों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब आप मंथित करते हैं तो सबसे पहले हलाहल विष निकलता है। विष, आप अगर समुद्र मंथन की घटना को पढ़ें तो सबसे पहले हलाहल विष निकलता है। और वो हलाहल विष होता है जब हमें ऐसा लगता है कि हम इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं, हम आध्यात्म की ओर प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे अंदर एक अहंकार आने लगता है और हम दूसरों को हेय दृष्टि से देखने लगते हैं कि मैं अगर आध्यात्म की ओर झुक रहा हूं, मैं इस प्रकृति के गहन रहस्यों को जान रहा हूं, तो बाकी सारे मानव तुच्छ हैं और हम उनकी उपेक्षा प्रारंभ करते हैं। ये उपेक्षा हलाहल विष है। और नागेंद्र हाराय, शिव इस विष को अपने कंठ में स्थान देते हैं, बाहर नहीं आने देते। वैदिक शास्त्र कहते हैं कि उन्होंने उस विष को हृदय अपने कंठ में धारण किया, बाहर नहीं आने दिया। उसी तरीके से जब ये विषाक्त विचार उत्पन्न हो मंथन के पहले चरण में, तो उस विष को बाहर मत आने दें, अपने गले में स्थान दें। ये आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। मैं आपको एक सफल व्यक्तित्व किस प्रकार का होना चाहिए उसका एक निवेदन कर रहा हूं। उस विष को अपने कंठ में धारण करें। किसी को भी उपेक्षित मत करें। जब आपको लगे कि आप ज्ञान से परिपूर्ण हो रहे हैं, आपका जीवन समाज में उच्च स्तर पर आ रहा है, तब आप लोगों की उपेक्षा करना छोड़ दें। यही हलाहल विष है जो समाज में नकारात्मकता का प्रारंभ करता है। फिर निकला उच्च श्रवा अश्व। अश्व यानी इच्छाएं। ध्यान रखिएगा, जब आध्यात्म आपकी तरफ पदार्पण करता है तो इच्छाएं, जीवन हमेशा आवश्यकताओं पर चलना चाहिए और इच्छाएं आपके नियंत्रण में होनी चाहिए। यदि आप वास्तविकता में अपने जीवन के आध्यात्म को परिपूर्ण करना चाहते हैं, तो जीवन आपका आवश्यकताओं पर चलना चाहिए, इच्छाओं पर नहीं। उसे कंट्रोल करिए। उच्च श्रवा अश्व को, ऐरावत गज अहंकार। फिर यह निकलता है अहंकार। जब निकलता है, देखिए 8 अपरा विभक्तियां हैं इस संपूर्ण सृष्टि में। जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की और मनुष्य को बनाया, तो उसने मनुष्य के हिस्से में 3 अपरा विभक्तियां रखी, 5 अपने नियंत्रण में रखी और 3 मनुष्य के लिए रखी। वो 5 अपरा विभक्तियां क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल, क्षिति मतलब धरा, जल, पावक अग्नि, गगन और समीरा वायु। ये 5 अपरा विभक्तियां ऐसी हैं जिनसे आप कभी भी दूर नहीं जा सकते। यदि आप एक से दूर जाओगे तो दूसरे के पास जाओगे। यदि आप क्षिति से
धरा से दूर जाने का प्रयास करोगे तो आप गगन की ओर चलोगे। यदि आप शीतलता, जल से दूर जाओगे तो टेम्परेचर, पावक की ओर बढ़ोगे। ये ऐसी अपरा विभक्तियां हैं जिनसे आप कभी भी दूर नहीं जा सकते। ये वो 5 अपरा विभक्तियां ईश्वर ने अपने अधिकार क्षेत्र में रखी और 3 मनुष्य के अधिकार में दी। वो है मन, मस्तिष्क और अहंकार। ये 3 अपरा विभक्तियां, इनसे भी कोई जीव इन अपरा विभक्तियों से, केवल मनुष्य नहीं, ये सभी को मिलती हैं, सभी जीवों को मिलती हैं। मन, मस्तिष्क एवं अहंकार। आप देखिए किसी भी जीव को, आपके घर में तमाम सारे जीव जो पालतू होते हैं, आप उनके मन के बारे में जानते हैं। कभी उनका खाने का मन होता है, कभी नहीं होता। यानी मन नाम की अपरा विभक्ति उसके पास भी है। मस्तिष्क, आप किसी भी जीव को एक निश्चित स्थान पर भोजन डालने लगे, वो घूम फिर करके उस जगह पहुंच जाता है। मस्तिष्क, मैं बुद्धि और विवेक की बात नहीं कर रहा, मैं मस्तिष्क की बात कर रहा हूं अभी। सिर्फ मस्तिष्क, उसको पता होता है कि उसका आहार कहां है, और आहार की जो खोज करे वो मस्तिष्क। मस्तिष्क को एक अपरा विभक्ति कहा गया है और ये सभी के पास होता है। और तीसरी, अहंकार। एक गली में अगर 2 बैल आमने सामने पड़ जाएं तो एक दूसरे को देखकर हुंकारते हैं। अहंकार भी सभी जीवों के पास है। और ये 3, हम मानव इस वजह से हैं कि हमें इन 3 अपरा विभक्तियों को नियंत्रित करना है। जो हमारा मस्तिष्क है उसको पहले बुद्धि और फिर विवेक में परिवर्तित करना है। मन पर आध्यात्म का नियंत्रण लगाना है। और अहंकार को विनम्रता में बदलना है। ये जीवन के उद्देश्य हैं। यदि आपने इन उद्देश्यों को परिपूर्ण कर लिया तो आपके व्यक्तित्व की साफल्यता को कोई रोक नहीं सकता। आप जिस भी दिशा में होंगे, जिस भी क्षेत्र में होंगे, जिस भी आयु वर्ग में होंगे, अगर आपने इन चीजों को नियंत्रित कर लिया, निश्चित मान लीजिए आप सम्मान के योग्य होंगे। और जब ये 3 चीजें नियंत्रित होती हैं तब व्यक्ति में आधारभूत स्तर पर सामर्थ्य उत्पन्न होता है। वही व्यक्ति समर्थ है जिसके अंदर इन 3 अपरा विभक्तियों को नियंत्रण करने की क्षमता है, जो इन 3 अपरा विभक्तियों को नियंत्रित कर सकता है। सिर्फ वही व्यक्ति समर्थ है। और इसके बाद सृष्टि का दूसरा पक्ष, ऊर्जा, नारी शक्ति। नारी शक्ति के कुछ गुण, यदि वो उन गुणों पर ध्यान रखें और पुरुष लगातार उन गुणों की प्रशंसा करें तो सृष्टि में ऊर्जा का स्तर, सकारात्मक ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ जाता है, इतना व्यवस्थित हो जाता है कि फिर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं आ पाती। और वो गुण है कीर्ति। ये मैं नारी तत्व के गुण बता रहा हूं। कीर्ति, श्री, वाक,
निष्ठा, मेधा, धृति एवं क्षमा, ये 7 गुण यदि लगातार इस सृष्टि में प्रशंसित होते हैं, ध्यान रखिएगा, यदि आपके जीवन में, आपके संबंधों में मधुरता नहीं है, आप ध्यान रखिए, अपने व्यक्तिगत स्तर पर इन गुणों की प्रशंसा करना प्रारंभ कर दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो नारी शक्ति में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। और नारी एक ऊर्जा है, एक अग्नि है। इस अग्नि की आहुति वीर्य होता है। यदि वीर्य सही आहुति केंद्र पर जाता है, जिसमें इन 7 गुणों का सम्मिश्रण होता है, तो समाज में उत्तम संतान का जन्म होता है और समाज एक सही दिशा की ओर बढ़ता है। हम सब की समस्या कि आजकल के बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। हम परेशान रहते हैं। आप कुछ मत करिए, आप बच्चों की मां जो है उनके इन 7 गुणों की प्रशंसा प्रारंभ कीजिए। आपके घर में धनात्मक ऊर्जा का अपने आप ही संकेंद्रण होने लगेगा और उस संकेंद्रण से आपका प्रयास सार्थक होना प्रारंभ हो जाएगा। इन अपरा विभक्तियों को वश में करते हुए, और भी अग्नियां हैं, अपरा विभक्तियों की भी अग्नियां होती हैं। जैसे धरा एक अग्नि है, धरा एक अग्नि है जिसका आहुति वर्षा होती है। ये कुछ ऐसे यज्ञ हैं जो इस धरा में लगातार होते रहते हैं। देखिए, ये सभी चिंतन के विषय हैं। हम सब भौतिक शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उसे अपना आधार बनाते हैं, लेकिन आत्मिक शिक्षा का क्या? आत्मिक शिक्षा वो विषय है जो धीरे धीरे छूटता जाता है, और जब ये छूटता है तो फिर समाज में कल्याणकारी कर्मों का अभाव होता है। व्यक्ति क्रिया को कर्म समझ लेता है। हम सब लोग कहते हैं कि आध्यात्म में मेरा ज्यादा रुचि नहीं, हम तो सिर्फ अपने कर्म करते हैं, और हम अपनी क्रियाओं को कर्म समझ लेते हैं। ध्यान रखिए, पढ़ना, कमाना, दीज आर ओनली वर्ब्स। ये सिर्फ क्रियाएं हैं, ये कर्म नहीं है। जब ये क्रियाएं समाज हित के सार्थक उद्देश्यों को परिलक्षित करती हैं, तभी ये क्रियाएं कर्म बनती हैं। जब आप अपनी किसी क्रिया को, यदि आप कमा रहे हैं, तो उसका उद्देश्य आपके परिवार और आपके समाज के प्रति क्या है, यह बात यदि आपको, आपके दिमाग में है और इस उद्देश्य की परिपूर्णता के लिए आप सतत प्रयास कर रहे हैं, तब आप कर्म कर रहे हैं। क्रियाओं को छोड़िए, कर्म की ओर अग्रसर होइए। ये नितांत आवश्यक है। एक प्रबल व्यक्तित्व के लिए ये चीजें, ये चिंतन, ये आत्म मंथन नितांत आवश्यक है। फिर जिस समय आप देखिए, समाज का भय मुक्त होना बहुत जरूरी है, और भय का दमन करता है ज्ञान। अंधकार से भय लगता है इस वजह से
क्योंकि अंधकार में है क्या ये पता ही नहीं चलता। यदि अगर वो चीज हमें दिखने लगे किसी प्रकार के प्रकाश से, तो फिर हमें उस चीज से भय नहीं रह जाता। प्रकाश के ज्ञान से भय मुक्त होता है, क्षमा कीजिए, ज्ञान के प्रकाश से भय समाप्त होता है। तो जब आपके पास ज्ञान का प्रकाश आता है तो धीरे धीरे भय का दमन होता है, और जब भय का दमन होता है तब आपका व्यक्तित्व अस्तित्व में आता है। व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि संकल्प लें तो भीष्म दिख जाए आपके अंदर। जब कभी भी आपको नीति निपुणता करनी हो तो विदुर दिख जाए आपके अंदर। जब कभी समाज को संदेश दिखना हो, संदेश देना हो, तो आपके व्यक्तित्व में साक्षात कृष्ण के दर्शन हो। ये वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने विवस्वान ज्ञान को अपने अंदर समाहित किया। ये विवस्वान ज्ञान आपको पता होना चाहिए, और इसके लिए किसी भी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं है कि आप किसी से उस ज्ञान को सुने। आपका व्यक्तित्व स्वयं इतना प्रबल होना चाहिए कि आप किसी भी स्थान में एकांत में भी बैठे हैं तो एकांत की भाषा आपको समझ में आनी चाहिए। वो ज्ञान जो भगवान कृष्ण, वेव इज द ओनली इमॉर्टल थिंग इन द वर्ल्ड, वेव एक ऐसी चीज है जो कभी नष्ट नहीं होती। भगवान कृष्ण ने वो विवस्वान ज्ञान अपने श्रीमुख से स्वयं बोला, जो आज भी इस सृष्टि में ध्वनि तरंगों के रूप में विद्यमान है। और जब आप एकांत में बैठते हैं तो उस विवस्वान ज्ञान को सुनने की क्षमता आपके अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए, किसी की आवश्यकता ना हो। जीवन का लक्ष्य बनाइए, मनुष्य से ब्रह्म, ब्रह्म से देव, देव से परमात्मा, और परमात्मा से भगवान। जब ये लक्ष्य परिपूर्णित होगा तो आपके जीवन में विवस्वान ज्ञान का आधार स्पष्ट होगा। ध्यान रखिए, बड़े बोझिल शब्द हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा क्लिष्ट नहीं है कि आपके रेगुलर प्रैक्टिस में आ ना पाए। ध्यान रखिएगा, यदि आप नियमित 10 मिनट का या सप्ताह में 20 से 25 मिनट एक दिन का भी समय देते हैं तो गारंटी है कि आप उस विवस्वान ज्ञान को सुनने में सक्षम होंगे। हम सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने कहा कि हमारा जीवन आवश्यकताओं पर चलना चाहिए, इच्छाओं पर नहीं। भगवान कृष्ण ने भागवत गीता के 9वें अध्याय में कहा है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, योगक्षेमम वहाम्यहम्। उन्होंने योग की परिभाषा दी है। योग का मतलब होता है आवश्यकता। उन्होंने कहा है योगक्षेमम, योग और क्षेम, क्षेम मतलब रक्षा। उन्होंने कहा तुम्हारी आवश्यकता और तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारी आवश्यकता और तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। यदि आप आवश्यकताओं पर जीवन चलाते हैं, इच्छाओं के पीछे नहीं भागते हैं,
तो आपको वास्तविकता में मानव जीवन के आधार को समझने का अवसर प्राप्त होगा। यदि इच्छाओं को लक्ष्य बना करके उनको हमेशा उनका पीछा करते रहेंगे तो संपूर्ण समय इसी में चला जाना। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो बैठा है। तुम अपना स्तर बनाओ और तुम्हारे स्तर पर जिस भी आवश्यकता का दर्शन होगा वो निश्चित मानिए परिपूर्ण होगा। बस इच्छा नहीं होनी चाहिए। योग पर जीवन चलाइए, जितनी आवश्यकता है उस पर, तो आपका समय इधर उधर के क्रियाकलापों से बचेगा। और जब बचेगा तब आप अपने अंतर्मन की बात सुन पाएंगे। हमारी आदत पड़ जाती है जीवन में अपने अंतर्मन की बात को दबा जाने की। हमको ज्यादातर समय यह पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमारा अंतर्मन क्या कह रहा है, लेकिन आदत पड़ी हुई इच्छाओं की अधिकता के कारण हम हमेशा उसे दबाते हैं। तो ये एक दर्शन है जिसका परिचय मैं आपको दे रहा हूं। ये सिर्फ एक परिचय है। इसमें जितने भी शब्द मैंने बोले हैं, ये शब्द, इनकी व्याख्या, इनका स्पष्टीकरण, ये सब बहुत आवश्यक है जीवन के लक्ष्यों को समझने के लिए। पहली बार मैं आपके सम्मुख हूं। धीरे धीरे हम लोग प्रयास करेंगे और इस ओर आगे बढ़ेंगे। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है मेरी अभी तक की बात के लिए, तो मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं उत्तर प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। कोई कुछ पूछना चाहता हो? आपने योग की बात कही शरीर के साथ, तो योग मतलब युज से निकलता है। तो जब आवश्यकताएं की बात हम करते हैं तो एक संदर्भ में आवश्यकता है, तो उस संदर्भ के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, बहुत ही सकारात्मक दृष्टि का प्रश्न है कि आवश्यकताओं का संदर्भ किस प्रकार से निश्चित किया जाए, कि इस संदर्भ की ओर हमारी आवश्यकता क्या कहती है। और मैंने इस प्रश्न को आने से पहले एक वाक्य बोला था कि आपका संदर्भ जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके सामर्थ्य पर निर्भर करेगा। जैसे जैसे आपका सामर्थ्य बढ़ता जाएगा, आपकी आवश्यकता का स्तर, जो आपकी इच्छा है, देखिए बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है इसमें, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस। आज जो मेरी इच्छा है, यदि मेरा सामर्थ्य बढ़ जाता है तो कल वो मेरी आवश्यकता भी बन सकती है। ध्यान रखिएगा, यदि आज मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं और धन मेरी आवश्यकता है, तो ये मेरी इच्छा नहीं है, ये आवश्यकता है। और ऐसे समय में काम आते हैं सकारात्मक मित्र, सकारात्मक गुरु, समाज का वो वर्ग जो इस बारे में आपको निर्देशित कर सके। आप उनसे बैठ करके बात करिए, वो आपके संदर्भ को, उसकी समीक्षा करेंगे, वो आपको बताएंगे
कि यदि आप इस तरीके से सोच रहे हैं, इस तरीके का विचार विमर्श अपने मन में ला रहे हैं, तो अब आपका संदर्भ उचित है या नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको ऐसा लगे, ये प्रश्न आता है मन में, ये प्रश्न आता है मन में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रतिस्पर्धा के कारण, उन्नति की आस में मैं अपनी इच्छाओं को अपनी आवश्यकता समझ लूं। बहुत ही सकारात्मक प्रश्न और बहुत ही उत्तम प्रश्न। लेकिन यह ध्यान रखिए, जब कभी भी ऐसा हो तो आप पहले से ही उन लोगों का चयन करके रखिए जो आपके संदर्भ की समीक्षा कर सकें, जो आपके संदर्भ की समीक्षा करने में सक्षम हो। इसका निर्णय कभी भी अकेले नहीं करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपकी पत्नी इस चीज में समर्थ है तो उसको करिए, लेकिन यह जरूर करिए। अभी आपने गुरु के कुछ स्तर की बात की, मनुष्य, ब्रह्म, देव, जी, तो इन लेवल में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो मनु संतति को फॉलो करे, उसके आधार पर अपना जीवन बिताए, वो मनुष्य। जिसका जीवन मनु संतति और मनु के बनाए हुए नियमों का पालन करते हुए समाप्त हो जाए, वो मनुष्य। और मनुष्य के ही शरीर में जो प्रकृति का चिंतन करना प्रारंभ कर दे, वो ब्रह्म। ध्यान रखिएगा, शरीर में परिवर्तन नहीं आता, वैचारिकता परिवर्तित होती है। हम केवल अपने परिवार और अपने समाज के लिए ही उत्तरदायी नहीं होते, हम प्रकृति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हमें इस बात का भी चिंतन होता है कि इस सृष्टि में हमारे अलावा पेड़ पौधे पशु पक्षी सब हैं, और हमारे द्वारा जो भी कर्म संपादित हों वो इन सब की भलमनसाहत के लिए हों। यदि आपके मन में ये विचार आने लगे और आप एकांत में बैठकर अक्सर इस बात का चिंतन करते हैं, तो आप ही ब्रह्म हैं। और आपका चिंतन आपको जब कभी भी, देखिए ध्यान रखिएगा, ज्ञान का एक स्तर, विषय का एक स्तर जब प्राप्त हो जाता है तो मनुष्य ब्रह्म बन जाता है। जब आपको अपने विषय से इतना प्रगाढ़ प्रेम हो जाए, जिस भी विषय में आपकी महारत हो उससे आपको इतना प्रेम हो जाए कि आप उससे संपूर्ण प्रकृति के नियमों की समीक्षा करने लगे, तो आप ब्रह्म हो गए, आप ही ब्रह्म हो गए। आपको यह लगने लगे कि नहीं, इस वर्ष वर्षा नहीं हुई, कुछ ना कुछ मनुष्य ऐसा कर रहा है कि वर्षा नहीं हो रही, आप ही ब्रह्म हैं। और जब इन अपरा विभक्तियों में से ईश्वर आपको किसी एक में निपुणता प्राप्त करा दे, तो आप ही देव बन जाते हैं। मनुष्य के बाद मैंने ब्रह्म के बाद देव का स्थान दिया। देव का मतलब होता है जिसका किसी एक अपरा विभक्ति में बहुत अच्छा पारंगतता हो जाती है। कोई डॉक्टर है, वो आपकी नाड़ी देख करके बताए दे रहा है कि आपको क्या समस्या है। ये सब देव हैं, प्रकृति चिंतन से ऊपर उठ चुके हैं। स्पेशलाइजेशन है अगर आपका एरोस्पेस में या इस टाइप से किसी ट्रेड में जिसमें अपरा विभक्ति शामिल है, खेती, धरा, सिविल डिपार्टमेंट, अगर आप इस तरीके के किसी स्पेशलाइजेशन फॉर्म में इतना आगे निकल गए हैं कि आप इन अपरा विभक्तियों से मनुष्य के जैसे देव कहा, किनको कहा जाता था? पवन देव, वरुण देव,
अग्निदेव, ये सब अपरा विभक्तियां हैं। और इन अपरा विभक्तियों का जिसने स्पेशलाइजेशन कर लिया, और प्रकृति का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, हर व्यक्ति का नेचर, हर व्यक्ति की प्रकृति, हर जीव की प्रकृति, उसके जीवन के विस्तार के लिए यदि आप इन अपरा विभक्तियों के साथ कुछ कर पा रहे हैं तो आप ही देव हैं। फिर इसके ऊपर परमात्मा का स्थान। जब आपके अंदर, परमात्मा के कई प्रकार होते हैं, परमात्मा में यदि आपके अंदर समाज को दिशा देने का सामर्थ्य आ गया तो आप ही आत्माओं को निर्देशित करने वाली परमात्मा बन जाते हैं। जब लोग आपको फॉलो करने लगे, आपकी बात मानने लगे, आपकी बात सुनने लगे, तो वो स्थान है परमात्मा का। और इन सब के बाद स्थान आता है भगवान का, जिसके अंदर कुछ अलौकिक क्षमताएं होती हैं। और वो अलौकिक क्षमता है शरीर के सृजन की। परमात्मा तक तो व्यक्ति प्रयास से पहुंच सकता है, और उसके बाद का जो भगवान बनने की प्रक्रिया है, ये आध्यात्म के बिना संभव नहीं है। जब इसमें आप आध्यात्म में परिपूर्णता प्राप्त करते हैं तो आप शरीर का सृजन करने में सक्षम हो जाते हैं। कृष्ण ने अपने शरीर का सृजन स्वयं किया था। बड़ी कहानियां हैं, जेल में पैदा हुए, फिर वहां पहुंच गए, बीच में क्या हुआ नोबडी नोज। क्या हुआ, भगवान कृष्ण हो गए। और ऐसे शरीर का सृजन करते हैं ये भगवान, जिस शरीर का डिके संभव नहीं होता, क्षय नहीं होता। इस शरीर में बाल्यावस्था मिलेगी, किशोरावस्था मिलेगी, युवावस्था मिलेगी, वृद्धावस्था नहीं मिलेगी। ये भगवान होते हैं जो अपने शरीर का सृजन करने में स्वयं सक्षम हो जाते हैं। भगवान राम को हम भगवान कहते हैं। आप रामचरितमानस पढ़िए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, उसमें स्पष्ट लिखा है, लोचन अभिरामा तनु घटश्यामा निज आयुध भुजचारी। जब वो पैदा हुए तो उनकी 4 भुजाएं थी और चारों भुजाओं में उनके अस्त्र शस्त्र थे। जब उनकी माता ने उनसे निवेदन किया, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुन वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। उन्होंने भी अपने शरीर का सृजन खुद किया। और युवावस्था के बाद डिके, यानी यदि आप इतने सक्षम हो जाएं कि किसी भी तरीके की नकारात्मकता का सृजन रोकने में सक्षम हो जाएं, क्षय रोकने में सक्षम हो जाएं, तब आप भगवान बनते हैं। ठीक है, और यही हमारे जीवन का क्रम है। आप ध्यान रखिएगा, आप जन्म पे जन्म लेते जाइए, लेकिन एक दिन आप ही, मोक्ष जिसे कहते हैं, मोक्ष का मतलब वही कि जब आप लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जब आप भगवान बन जाएंगे तभी आप भगवान से मिल पाएंगे। ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं मिल पाएंगे। जब आपके गुण उस स्तर तक हो जाएंगे, आप कितने भी जन्म लगा लीजिए, जब गुण उस तरीके से हो जाएंगे, पहले आपको मनुष्य में मनु संतति का पालन करना है, और आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड लिटरेचर वेद है, वेद उपनिषद, इनको पढ़िए, फिर ब्रह्म संहिता पढ़िए, तब आप ब्रह्म बनते हैं। फिर आप देव, जब आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं चीजों के लिए, सृजन करिए। इन अपरा विभक्तियों के गुणों का, इनके धर्मों का नियम जो है उसका सृजन करिए,
लिखिए, समाज को दीजिए, आप देव बनेंगे। परमात्मा समाज को निर्दिष्ट करने के लिए कुछ लिटरेचर लिख करके जाइए। परमात्मा जब ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाती हैं, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्लेम द प्लेस ऑफ भगवान। अलौकिकता अपने आप ही आपके अंदर आने लगेगी और उस समय मोक्ष के दावेदार अगर आप हैं तो ध्यान रखिएगा, आप ही भगवान हो, आप ही भगवान। यदि किसी का दारुण दुख देखकर आपके अंदर सड़क पे कोई दुर्घटना हुई और आप के अंदर एकदम से वो भाव उमड़ता है कि नहीं, ये व्यक्ति, इसके साथ कुछ गंभीर स्थिति है, इसको हम अस्पताल तक ले जाते हैं, तो गुण तो देवत्व के ही है ना। हम जब कभी भी किसी मंदिर या किसी भी पूजा स्थल में जाते हैं और सामने खड़े होते हैं तो हम ये मान करके चलते हैं कि मेरा भगवान, मेरा ईश्वर, मेरा आराध्य जो भी है, उसके अंदर किसी भी तरीके की नकारात्मकता नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ उसके सद्गुणों के आगे शीश झुकाते हैं। वही सद्गुण लेकर आने हैं अपने जीवन में और आप ही भगवान बनेंगे। ये लक्ष्य है, ये उद्देश्य है। आप कितना भी भाग लें, एक दिन ऐसा होगा जब इस संसार की सभी कलाएं आप जानेंगे। हो सकता है आप में से कुछ स्विमिंग जानते हो, कुछ ना जानते हो, कुछ संगीत जानते हो। जब आप सब कुछ जान जाओगे, इस शरीर में रहते हुए सारी अपरा विभक्तियों के तैरना, उड़ना, सब कुछ जब आप जान जाओगे, क्योंकि भगवान वो होता है who has all the knowledge of all the universes, जिसके पास संपूर्ण ब्रह्मांडों का संपूर्ण ज्ञान है। तो जीवन में जितनी देर जाग रहे हैं उतनी देर लगातार अर्जन कीजिए ज्ञान का। अगर इस आपाधापी को रोकना चाहते हैं, बार बार जन्म की प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं, जितनी देर जाग रहे हैं, जितनी देर आप चेतना की अवस्था में हैं, उतनी देर लगातार कुछ ना कुछ सीखिए, क्योंकि जो भी चीज रह जाएगी उसको सीखने के लिए दोबारा से इस धरा में आना पड़ेगा। क्योंकि उद्देश्य जब तक परिपूर्ण नहीं हो जाता तब तक उस शक्ति से जब तक आपका सामर्थ्य मिल नहीं जाएगा तब तक आपको मुक्ति नहीं है। यही आप चाहे माने या ना माने, बहुत सारे लोग यहीं ऐसे बैठे होंगे, देवत्व के गुण होंगे, परमात्मा के गुण होंगे, ब्रह्म के गुण होंगे आप में ही, लोगों में। हम केवल उनको पहचान नहीं पाते। कभी कभी हम उन्हीं को दबाते रहते हैं, उन्हीं को दबाते रहते हैं। ये सोचते रहते हैं कि अरे यार, भौतिकता का जितना, देखिए आलस्य क्या है? आलस्य आध्यात्म का शत्रु है। और यदि आप अपने आलस्य को समाप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ आध्यात्मिक हो जाइए, आलस्य खत्म हो जाता है। आलस्य है क्या? भौतिकता की तरफ आप क्या करेंगे? ज्यादातर भाई हमारा ये शरीर भौतिकता को भोगता है और हम इस शरीर की ही पूजा करने लगे, इसी की सेवा करने लगे, यही आलस्य है। और आध्यात्म भौतिकता से दूर रहने की सलाह देता है। तो ये कुछ बातें हैं, यदि आप इन बातों को समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि एक एक स्तर आपका उठता जाएगा। और निश्चित मानिए, मैं आपसे मजाक की बात नहीं कर रहा हूं। आप ही में ब्रह्म बैठा होगा, आप ही में परमात्मा होगा, आप ही में देव बैठे होंगे। बस आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। और हो सकता है अगले भगवान भी आप ही हो। इतने बड़े संत ने कह दिया, कबीरा इस संसार में सबसे मिलिए नाय, और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कहां बैठा है आपके बीच में, हमारे बीच में, कहीं यहीं पर टहल रहा है, किसको पता? किसको पता कि किसका अगला गुण नारायण को क्लेम करने वाला हो?
तो उतनी विनम्रता, उतना ओज अपने अंदर लेकर के आइए, वो दृष्टि डेवलप कीजिए। मुझसे लोगों ने पूछा क्या भगवान को देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है, वो दृष्टि तो हो, वो दृष्टि तो हो। बहुत सारी ऐसी फ्रीक्वेंसीज है जिनको हम नहीं देख पाते। जब हमारे पास वो दृष्टि डेवलप हो जाएगी, और इतनी विनम्रता ले आइए कि सभी में हर वो व्यक्ति आज मनुष्य है, यदि प्रयासरत है तो एक दिन भगवान जरूर बनेगा। तो आपको तो सभी को झुककर प्रणाम करना है, क्योंकि प्रयास और भक्ति ये दोनों बराबर की चीजें हैं। भक्ति करने में जितना आपको पुण्य मिलता है, उतना ही प्रयास करने में भी मिलता है। ध्यान रखिएगा, यदि आप प्रयासरत हैं तो आपका आध्यात्म स्वीकार हो रहा है। आप कुछ मत करिए, अपने उद्देश्यों के प्रति प्रयासरत रहिए, आपका आध्यात्म स्वीकार होगा। ठीक है? व्यक्तिगत रूप से मैं आज यहाँ आपसे बहुत कुछ सीख के वापस जाऊंगा। तो इस वार्ता की शुरुआत में, जैसा कि गुरुजी हम लोग जानते हैं कि मनुष्य का जीवन संघर्षों, अनेक विपरीत तरीकों का अनुभव और दुविधाओं के बीच चलता रहता है। तो आपकी वो बातचीत मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई कि आप प्रतिज्ञा या संकल्प इस तरीके के लीजिए कि आपके व्यक्तित्व में भीष्म दिख जाए, नीति और न्याय की बातें ऐसे कीजिए कि विदुर दिख जाए, और निर्देशन, मार्गदर्शन, लोगों को कुछ ऐसा बताइए कि आपके अंदर कृष्ण दिख जाए। तो इसी संदर्भ में मेरे मन में एक दुविधा है, अगर आप मार्गदर्शन करें तो अगर एक व्यक्ति होने के नाते आप अपने परिवेश के समाज में अगर नीति और न्याय सम्मत वैचारिक चीजों का संचार करना चाहें और एक ऐसे समाज की परिकल्पना करना चाहें, तो उसमें मिल रहे खराब अनुभवों को सामना किस तरीके से किया जाए, इस पर मैं आपसे कुछ सुनना चाहूंगा। धन्यवाद। देखिए, समाज में जब कभी भी आप कोई भी बहुत अच्छा काम करना शुरू करते हैं तो आपने कभी दीपक जलाया है? दीपक जलाते समय कई बार ऐसा होता है कि पहले वो लौ नहीं पकड़ता। जहां कहीं पर भी प्रकाश प्रदीप्तिमान होने वाला होता है, नकारात्मकता सबसे पहले उसे बुझाने पहुंचती है। लेकिन हम उसके चारों तरफ एक दृढ़ता का आवरण लगा देते हैं। यदि आप समाज में नीति स्तर पर, वैचारिक स्तर पर कोई अच्छा संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो अपने चारों तरफ कुछ लोगों का जो आपकी वैचारिकता से पूरी तरीके से सहमत हो, ऐसे लोगों का एक आवरण बना लीजिए। ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को। जब कभी भी आप सामाजिक रूप से इस कार्य में उतरते हैं तो आपके पास 8-10 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपके विचारों को जी रहे हों। ऐसे लोग आपके कटु अनुभवों को तुरंत समाप्त कर देते हैं। यदि कभी आपको किसी प्रकार का कटु अनुभव हुआ तो वो आपके पास तुरंत आएंगे, कहेंगे अरे वो ऐसे ही कह रहा था, उसको इतना ज्ञान नहीं है, आप कैसे परेशान हो रहे हैं। आपको संबल मिलता है। ध्यान रखिएगा, पहला प्रयास, इस प्रयास में कई वर्ष लगते हैं। आपको वो 8-10 लोग तैयार करने में काफी समय लग जाएगा। और जब एक बार वो तैयार हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि नहीं ये हमारे दृढ़ स्तंभ हैं, ये कहीं नहीं हिलेंगे, उसके बाद आप समाज में अपना
अपनी बात को रखना धीरे 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 प्रारंभ कीजिए। ये आपको मेरा एक सजेशन है, परामर्श है, इसको कभी आप फॉलो करके देखिएगा। दूसरी बात, एक चीज मैं आपको बताऊं कि यदि आपको पता है कि आप सारगर्भित चीजों का प्रसारण कर रहे हैं, ठीक है, तो निश्चित मान लीजिए कि आपको प्रशंसा बहुत कम मिलेगी, बहुत कम मिलेगी, क्योंकि ये आध्यात्म की बातें हैं। और ये हम मतलब इसी वजह से मैंने आकर के सबसे पहले सभी लोगों का धन्यवाद किया, क्योंकि आध्यात्म की बातें सुनने का समय ही नहीं है किसी के पास। यही अगर कोई भौतिकतावादी सेशन होता तो आपको इतनी भीड़ होती कि मैं आपसे क्या कहूं, ठीक है। तो धीरे 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 धीरे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना प्रयास रोक दें, और प्रयास कभी भी प्रसिद्ध होने के लिए मत कीजिएगा। प्रयास हमेशा आत्मिक संतुष्टि के लिए कीजिएगा। भक्ति हम कभी भी प्रसिद्ध होने के लिए, मैंने प्रयास और भक्ति एक बात कही है, भक्ति हम कभी भी प्रसिद्ध होने के लिए नहीं करते। भक्ति हम अपनी आत्मिक संतुष्टि के लिए करते हैं। उसी तरीके से प्रयास भी आत्मिक संतुष्टि के लिए होने चाहिए, किसी भी तरीके की और कि हमको बहुत सारे लोग जान जाएं, ऐसा हो जाए, ये सब की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस मार्ग में सकारात्मक रूप से चलेंगे तो धीरे 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 एक दिन आप स्वयं ओजस्वी होने लगेंगे, और जहां खड़े हो जाएंगे, जहां भी खड़े हो जाएंगे, जहां बोलना शुरू कर देंगे। आपने वो मेरे ख्याल से विवेकानंद जी को सभी ने पढ़ा होगा। वो जब अपना शिकागो में भाषण दे रहे थे तो लोगों ने उनसे पूछ लिया कि कृष्ण बंसी बजाते थे तो लोग पीछे पीछे कैसे चले जाते थे। विवेकानंद जी बोलते बोलते मंच से उतरे और समुद्र के किनारे खड़े हो गए जाके, लोग उनके पीछे पीछे खड़े हो गए जाकर। उन्होंने कहा, जब मैं सिर्फ मनुष्य हूं और मेरी बात सुनते सुनते आप यहां तक आ गए तो वो तो ईश्वर थे। तो जब सकारात्मकता आप प्रसारित करें, और ध्यान रखिएगा, हीरे की पहचान जौहरी को होती है। हमेशा जो व्यक्तित्व के जौहरी हैं, अगर आप इस दिशा में प्रयास करना चाहते हैं तो केवल वही आपकी पहचान कर पाएंगे, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो दृढ़ता से बैठकर इस नीरसता के सुख का अनुभव करें। सुविधा की तरफ भागते हैं लोग, सुख की ओर नहीं। सुविधा, जिधर सुविधा देखते हैं, जबकि आनंद, सुख इस क्रियाकलाप में, ठीक है। तो कभी भी इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप प्रयास करिए, प्रयास आपकी आत्मिक संतुष्टि के लिए हो, और निश्चित मान लीजिए आप जिस समय अपने जीवन को परिपूर्ण करेंगे, नेत्र बंद करते समय, जब आप अपना अंतिम श्वास ले रहे होंगे, उस समय आपको किसी प्रकार का क्षोभ नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, सुख में ही प्राण निकलेंगे। यह बहुत बड़ी बात है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, तब प्राण तन से निकले। जब कंठ से प्राण मेरे निकल रहे हो तो मेरे कर्म ऐसे रहें कि मुझे कोई रोग ना हो। वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय, मेरे प्राण इस प्रकार से निकले जैसे मैं वस्त्र बदलता हूं, मुझे किसी प्रकार का कष्ट ना हो, आराम से मृत्यु हो, इतनी आराम से कि अंतिम श्वास भी ऐसे लगे बस अभी दूसरे शरीर में जाके श्वास ले रहा हूं। और ऐसा तब होता है जब आपकी भक्ति मतलब प्रयास सार्थक रहते हैं। जीवन भर सार्थक प्रयास करिए, सार्थक प्रयास करेंगे, कभी भी मृत्यु का भय नहीं होगा, कभी नहीं भय होगा। और यही आपके जीवन का, देखिए भय तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप मृत्यु भय को जीत गए,
अपने प्रयासों से। मतलब आपके प्रयास और आपके पास इतना कर्म हो करने के लिए कि आपको मृत्यु को देने के लिए भी समय ना हो। आप मृत्यु को स्वीकार करें, अपने अध्यात्म से कहें कि मेरे पास मृत्यु को देने के लिए सिर्फ 5 सेकंड हैं। ऐसा ना हो कि साल भर पहले से, 2 साल पहले से मुझे पता चल जाए कि अब मुझे ऐसा रोग है कि मेरी मृत्यु होने वाली है। इतना समय नहीं है मेरे पास, आओ लेकर के चले जाओ। इतना प्रयास और इतने कर्मों की अधिकता हो तो व्यक्तित्व है, नहीं तो व्यक्तित्व नहीं बना पाए। आई बात? जैसा कि सर थोड़े समय पहले आपने मानव कार्यशैली के लिए 3 उदाहरण प्रस्तुत किए, जिसमें पहला था संकल्प के लिए पितामह भीष्म का, दूसरा था नीति के लिए विदुर का, और तीसरा था मैसेज, समाज को अगर हम कुछ मैसेज डिलीवर कर रहे हैं तो उसके लिए आपने भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण दिया। तो सर लास्ट 2 से मैं सहमत हूँ, लेकिन पहला अगर भीष्म पितामह का लिया जाए संकल्प का, तो जैसे कि उन्होंने प्रण लिया था कि वो आजीवन उस पुरुष सिंहासन से बंधे रहेंगे और जो भी उस सिंहासन पर बैठेगा उसमें वो अपनी पिता की छवि देखेंगे और उसको उनका कभी वो प्रतिकार नहीं करेंगे। तो जब राज्यसभा में, भरे राज्यसभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस वक्त भी उन्होंने उसका प्रतिकार नहीं किया। तो ऐसे संकल्प से हमें क्या फायदा है जो समाज को सही दिशा न दे? देखिए, यहां पर मैं भीष्म की प्रतिज्ञा की समीक्षा नहीं कर रहा हूं, भीष्म की प्रतिज्ञा निभाने के यत्नों की प्रशंसा कर रहा हूं। प्रतिज्ञा उन्होंने क्या ली, उसके क्या परिणाम निकले। अगर प्रतिज्ञा पूर्णतया सत्य होती तो भीष्म के शरीर में इतने बाण न लगे होते। भीष्म जिस समय मृत्यु शैया पर पड़े थे, बाणों की शैया पर पड़े थे, शरीर के प्रत्येक अंग में बाण भरे हुए थे, तो कृष्ण उनसे मिलने गए। भीष्म ने कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि मुझे याद है मुझे क्यों इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। मुझे अपने कई हजार जन्मों तक का याद है, मैंने किसी के साथ इतना बुरा नहीं किया और यह कष्ट मुझे मिल रहा है। तब कृष्ण ने कहा, इसी जन्म की बात कर भीष्म, इसी जन्म की। तूने नारी के किसी भी स्वरूप की क्या मान्यता रखी? तेरी मां गंगा, और मां गंगा से तू कुपित होकर चला आया था कि आज के बाद तुम्हारे तट पर नहीं आऊंगा। शीश होता है मां के लिए। भगवान न करे आपको यह दृश्य देखना पड़े, लेकिन यदि किसी माता का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो बार बार शीश पकड़ करके चूमती है, सर उठाती है, बार बार गोद में रखती है। शीश होता है मां का। भीष्म से कहा कृष्ण ने, तूने अपनी माता से कहा कि आज के बाद मैं तुम्हारे तट पर नहीं आऊंगा, देख तेरा शीश कैसे झूल रहा है। इसी अहंकार को तू अपनी मां को दिखा करके आया था। माता का स्वरूप अहंकार दिखाने के लिए नहीं होता, शीश झुकाकर प्रणाम करने के लिए होता है। गर्दन से लेकर घुटने तक पत्नी, जीवन साथी, उसका अधिकार होता है। तुम अंबा, अंबिका, अंबालिका को हर लाए और उसके बाद हरण तुमने किया, और वो भी तुमने विचित्र वीर्य के लिए किया। जब अंबा, अंबिका, अंबालिका ने तुम्हारे सामने प्रणय प्रस्ताव रखा तो तुमने उसे ठुकरा दिया। तो देखो तुम्हारी गर्दन से तुम्हारे घुटने तक कितने बाण लगे हुए। और घुटने से नीचे का अधिकार होता है पुत्र वधू और पुत्री का। वो पुत्र वधू जिसको भरी सभा में घसीटा जा रहा था, यदि तुम उसके लिए खड़े होते तो इतना कष्ट ही बचा ले जाते, लेकिन तुम खड़े नहीं हुए। तुम अपनी, भगवान ने कहा कि मैंने भी तो कहा था, प्रतिज्ञा ली थी
कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी ओर रथ का पहिया उठा करके भागा था। प्रतिज्ञा एक वर्तमान का सत्य होती है। भविष्य में आपको क्या देखना पड़ जाएगा, संकल्प आप वर्तमान के लिए लेते हैं और संकल्पित रहते हैं। ये जो कलावा हाथों में बांधा जाता है, इसका भी यही है कि जब तक ये बंधा हुआ है तब तक मैं संकल्पित हूं, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है ये मुझे अभी जानकारी नहीं है, और भविष्य में जब कुछ ऐसा घटित होगा तो मैं उसके हिसाब से थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी अपने स्वभाव में लाऊंगा। तुमने ये नहीं किया। मैं भगवान था, मैं भगवान होकर मैंने अपनी प्रतिज्ञा में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, और तू मनुष्य होकर जब तू, तो देखिए उनकी प्रतिज्ञा की समीक्षा नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने मृत्यु पर्यंत उस संकल्प को जिया, इसके लिए वो प्रशंसा के पात्र। उन्होंने उसका, अपनी प्रतिज्ञा का दामन नहीं छोड़ा। प्रशंसा इस बात की, समीक्षा कि उससे समाज को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इस बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे। तो जो बात मैंने कही कि जब आप संकल्प लें तो आप इतने दृढ़ हो, इतने दृढ़ हो। संपूर्ण कौरव सेना को यह पता था कि जब तक भीष्म जिंदा है, यहां तक कि कृष्ण को भी पता था कि जब तक भीष्म जीवित हैं तब तक युद्ध जीता नहीं जा सकता। इतना दृढ़ व्यक्तित्व बनाइए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। ठीक है, और कोई? चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब आप आगे का कर। Moving towards the end of this session, I'd like to heartily welcome Dr. Naren Naik as our chief guest of this event, and he's faculty in electrical department, and he has been serving our institute with his technical wisdom from last many decades. So please, Dr. Naik, we want to give you a memento from our NGO. Ice, please. आइए, इधर आ जाइए प्लीज। Thank you, sir, for honoring us in our event. Now, I would like to requestfully call upon the Vice President of our NGO, Haripriya ji, please come and give a thanking speech. गुड इवनिंग एवरीवन। इसके पहले कि मैं आप सबके इतने सहयोग के लिए आपको धन्यवाद दूं, इतनी सारी सुखद और इतनी अच्छी ज्ञान भरी बातों के बाद सिर्फ एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम सब ने बचपन से एक चीज़ सुनी है, जब भी कभी बात होती है ऑनेस्टी की, सच्चाई की, कि क्या साथ लाए थे और क्या साथ ले जाएंगे। मैं इस चीज़ से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। देखिए, आप जब सोसाइटी में देखते हैं तो कुछ लोग आपको ऐसे दिखते हैं जिन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा, एंड दे आर ब्लेस्ड विथ सो मेनी थिंग्स, एंड वी से देम गिफ्टेड, करेक्ट। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतनी सारी निगेटिविटी के साथ आते हैं कि वो उन्हीं से पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहते हैं। उनकी एंजाइटी, उनका एंगर, सो मेनी फ्रस्ट्रेशंस, वो उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। हम जब ब्रह्म बनेंगे तब बनेंगे, जब देव बनेंगे तब बनेंगे। बट फॉर द प्रेजेंट व्हाट वी कैन डू इज, इस लाइफ में आप जितना सीखेंगे, जितना सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, जितना कंट्रोल सीखेंगे, जितने ग्राउंडेड बनेंगे, जितने पोलाइट बनेंगे, आप सबको अपने साथ लेके जाएंगे। और जब नेक्स्ट बर्थ में आप आएंगे तो आप वो सब अपने साथ ले करके आएंगे।
मतलब आपको सिलेबस कम मिलेगा अगली बार कवर अप करने के लिए। अगर ये नहीं पॉसिबल है कि एक जर्नी में सब पूरा हो जाए, वी कैन डू इट इन द पार्ट्स। हम करते क्या हैं, बचपन से बड़े हुए, ठीक है, 4 इयर्स 5 इयर्स 6 इयर्स, सिलेबस इज डिसाइडेड, गोल इज डिसाइडेड, आईटी करना है, ये करना है, वो करना है, भागते जा रहे हैं, वो हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो करना ही है। और उसके बाद जैसे ही आपको सेटलमेंट मिला, आपको ऐसा लगता है बस जिंदगी पूरी हो गई, सब कर लिया। नहीं, दैट इज अ रियल टाइम, यू हैव टू स्टार्ट नाउ। अब जो अभी तक देखने का समय नहीं मिला, दैट यू हैव टू डू। एंड सबसे पहले काम करिए अपने बिहेवियर, अपने नेचर, अपने एटीट्यूड पे, जिसपे शायद हम पूरी जिंदगी एक बार भी कभी ध्यान नहीं देते। लोग कंप्लेन करते रहते हैं, यू आर वेरी इरिटेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, तुम सुनते नहीं हो, तुम समझते नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसमें भी दूसरे का फर्क निकालते हैं और उस चीज को आगे वैसे के वैसे लेके चले जाते हैं। सारा आध्यात्म, सारा नॉलेज, सारी लाइफ, सब लोगों कुछ को ये सिर्फ भी और कह सिर्फ दीजिएगा तभी कि जो जोड़ना सक्सेसफुल चाहते है हैं और ग्रुप हो में जोड़ पाएगा सकते हैं, नंबर अपना when दे you दें, realize that you also need to do नंबर something, लेकर के उनको जोड़ दें। right? करते जाइए, कहाँ क्या मिलेगा कौन जानता है। कुछ लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि मोक्ष का क्या करेंगे, ठीक बात है, मरने के बाद क्या मिलता है पता नहीं, ये भी ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सवाल ये है कि भगवान कृष्ण तो इसी धरती पे पैदा हुए थे, इसी धरती का सारा वैभव उन्होंने यहीं पर जिया, थे तो मानव के ही रूप में। तो ये कहाँ लिखा है कि आपके एफर्ट्स आपको वही सुख, वही समृद्धि, वही ऐश्वर्य, वही सब कुछ नहीं प्रोवाइड करा देंगे। किसी भी चीज पे जो टफ पड़ती है, वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस, क्योंकि हमें करना कुछ नहीं, ना कुछ करना है, ना कोई एफर्ट करने हैं, और जो करके हाथ आगे बढ़ाए उसे भी पीछे खींचना है। सो काइंडली चेंज योर एटीट्यूड। जैसे हमारी फैमिली होती है ना, हमारा टाइम डिवाइडेड होता है, शाम को ही बच्चे को भी पढ़ाना है, वाइफ को भी टाइम देना है, कहीं मैरिज फंक्शन पड़ जाए तो वहाँ भी जाना है, सेम इज आवर लाइफ। वैसे ही एक एजुकेशन के पार्ट के बाद बाकी सारी चीज़ों के लिए भी हमें काम करना है, और साथ में दूसरों को भी हाथ बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ रुद्र समागम सेवा एवं शिक्षा समिति की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, मैं हरिप्रिया, संस्था के उपाध्यक्ष, आईटी कानपुर का, हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर मिस्टर नायर का, आप सारी फैकल्टीज का, विवेकानंद समिति का, आप सारे स्टूडेंट्स का तहे दिल से कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। So now I would like to mention the names of our members whose valuable contribution has been given to our NGO. So Secretary of our NGO, Mr. Ashish Singh, Treasurer Preeti Singh, and the rest members, Priyanka Ma'am, Riya Singh, Tanmay, Ritik, Vigneshwar, Manish Ji. And at last, I would also like to mention the names of the students and some staff members who have been helped to make this session possible. Thank you so much for your contribution and your time. I would like to share the names. Vimal Kumar from Physics Department, Chandan Kumar Yadav, Aerospace Department, Usha Singh, Civil Department, Bhavya Garg, CSE, Yash Kumar, Mechanical Department, Vishnu, Mechanical, Ashutosh Yadav, Mechanical, Julie, Vinayak from Mechanical, Pankaj, Civil Department, Vivek, Physics Department, Shivnag, Aerospace Department, Nitish, Civil Department, Abhiram, Civil Department. So thank you so much to all of you. And at last, I would like to give you some information if you want to connect with our NGO. So we have a page on Facebook and Insta. You can follow our page, and we also have a YouTube channel named by Rudra Samagam. It has so many motivational, spiritual, and inspirational videos. So you can also go through and subscribe the channel, and the Facebook and Insta pages Rudra Samagam. So I hope you people would like to join us, and I would like to give Saurabh for the rest information. So at last, I will like to share the number of our group members, and you can like message us, and you can join our WhatsApp group also. On that one,
we share wherever we are organizing our events, we share the venue and also the timing of the event. So any interested people can approach us on the group. We will mention the number. So thank you all.